कविता मतलब हंसमुख है शुरू से ही बहुत ही, और ये सीरियस रही है पढ़ाई में भी। और ये जिस बात को इसने पढ़ लिया और सही समझ लिया तो उसको लागू करने की इसकी आदत रही है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਨਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆ ਇਹ ਲਿਖਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। कविता का स्वभाव ऐसी है जी, बहुत नॉर्मल ही है। इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, सबके गले ही मेल मिलाने वाली लड़की है ये। दुल्ले बच्चे खुश ने, ਅਸੀਂ खुश ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਨੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। कि मेरी लड़की ने जो चुनाव किया है और बेस्ट चुनाव किया है, उसका आधार एक ही है कि जो जिन प्रोग्रेसिव विचारों को लेकर के लड़की आगे काम कर रही थी, उसने लड़के का चुनाव उसी दृष्टि से किया है। अभी अब मैं जिस विचार को और प्रोग्रेसिव विचार को आगे बढ़ाने में लगी हूँ, मेरा जीवन साथी भी उसको बढ़ाने में लगे। तो आपको ये कैसा लगा जो इसके जो ऐसा खर्चा नहीं करना, धूमधाम से शादी नहीं करनी, शादी बड़ा बढ़िया लगा मैंने तो ये, बहुत बढ़िया लगा। इस किस्म का होना चाहिए। होना चाहिए। ਇਹ ਸਾਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। अच्छा, दुनिया ਤੁਸੀਂ सहमत देखो- होए थे? ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਬੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖਾਤਾ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਆਜ਼ ਖਰਚਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਵਧੀਆ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੁੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਮਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, 23 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 2013। मतलब आज भी 23 है तो इस करके 23 का दिन चुनिया सीगा। मेन तो वैचारिक सांझ के कारण ही ज़्यादा जुड़ना हुआ, और
और मैं फेसबुक से ही शिविंदर से जानने लगी हूँ। और क्योंकि जब भी सोशल मुद्दों पे कोई भी होती थी तो हमारी आपस में चर्चा होने लगी धीरे धीरे, और मुझे लगा कि ये मतलब हमारे एक ही मतलब हमारी आइडियोलॉजी है। और धीरे धीरे जब इंटरेक्शन बढ़ी, हम इसी दिन 23 नवंबर 2013 को मिले थे फर्स्ट टाइम, और उसी से ही मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ता गया। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਲਵਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ। मतलब मैं एडवोकेट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। हमारा जन संघर्ष मंच हरियाणा से मैं जुड़ी हुई हूँ, और इधर स्टूडेंट फ्रंट पे मैं कई सालों से काम कर रही हूँ हरियाणा में। या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारा SOSD के नाम से स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, और उसकी कन्वीनर के रूप में मैं यहाँ काम कर रही हूँ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ ਬੁਰਜਲੇਟਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ। NRI ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। NRI 3-4 ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। एक्चुअली जब मैं ये सोच ही रही थी कि शादी किस वे से होनी चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए, तो मेरे मन में सबसे पहले ये था कि जिस तरीके से ना लड़की हालांकि कुछ ना कुछ खुद भी उनके अंदर आप जैसे कह रहे हो कि अंदर से आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोशल वैल्यूज़ उनको इस तरीके से का बना देते हैं कि वो आती है, बैठती है, और जैसे देवी देवता बैठ जाते हैं ना और उनको पूजने लगते हैं। मुझे ये लगता है कि वो मेरी अंदर की जो मेरी रियलिटी है, जो मेरी वास्तविकता है, वो नहीं रहती। वहाँ पे सिर्फ जो आडंबर है बाहर का, दूसरों को शो करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम ऐसे हैं और ऐसे हैं, मुझे लगता है कि वो शो ज़्यादा होता है। और मुझे इसीलिए हमें ये लगा कि इसमें भी हमारा जो असलियत में अगर आपका लगाव है, तो शादी का ढंग भी उसी तरीके से नेचुरल होना चाहिए, और जो हमारी अंदर की मतलब वास्तविकता है, वैचारिक है, वो हमारी झलकनी चाहिए। हमारे वे ऑफ जो मैरिज है उसमें भी वो झलकना चाहिए। तो इसी वजह से हमने यही रखा कि हम कोई इस तरीके का कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे जो कंफर्टेबल मुझे लगा कि मैं इस तरीके से कंफर्टेबल हूँ। मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं वो पहन लेती और बहुत ज़्यादा कर लेती, उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी। दैट्स वाई मैं इसी तरीके से आई हूँ। देखो पहली गल तो है कि लिव इन दे असी कोई उल्ट नहीं है, अपनी मर्जी है, तुसी जिवें मर्जी है, कोर्ट मैरिज ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗੀਰੂ ਫੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੰਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜੰਝ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਗਾਜੇ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ 23 ਦਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ 23 ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ 150 ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਗਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਥ ਵੀ ਤੋੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਇੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਅਸਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ जा के करनगे। खासकर मुझे लगता है कि हमारे समाज में जो शादियां होती हैं वो लेन देन का व्यापार ज़्यादा लगता है, मेरे को आडंबर का ज़्यादा लगता है, और एक हिसाब से वैचारिक सांझ नहीं होती है। वो सिर्फ मतलब एक तरह की हो गया कि हाँ शादी करने लगे या वो शादी के लिए शादी। मुझे ये लगता है कि शादी के बाद मैं जिस तरीके से एक्टिविटीज़ करती आई हूँ, मुझे इस दौरान काफ़ी सारे कमेंट्स जब मैं किसी को बताती हूँ सुनने को मिले हैं पर्सनली। कोई कह रहा है कि हाँ आप तो इस तरीके से एक्टिविस्ट हैं, शादी करने के बाद कहीं आप घरेलू ना बन जाएं, कहीं आपकी एक्टिविटीज़ कम ना हो जाएं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे आगे और शिवेंद्र जिसको मैं लाइफ पार्टनर मैंने चुना है, और मैं ये समझती हूँ कि वो समझता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, तो हमारे आगे ये चैलेंज भी है कि हम किस तरीके से इसमें भी एक मिसाल पेश कर सकें, सिर्फ वे ऑफ मैरिज से नहीं बल्कि हम अपने लाइफ के जो मतलब आगे है हमारा चलने का समय है उसमें भी हम एक मिसाल पेश करें। मेरी यही है इसमें। ਦੇਖੋ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾਸਤਕ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਨਾਸਤਕ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 5000 ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਤੇ 5 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ 10 ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਪਿਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ अपने विचारों राही सहमत किया है। मेरे साथ जो मेरे मम्मी पापा हैं और कहीं ना कहीं एक हद तक शिवेंद्र के मम्मी पापा की ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी लेफ़्ट लीनिंग के हैं, लेफ़्ट से जुड़े हुए हैं। उनके मम्मी पापा की मैं सराहना करती हूँ इस बात में कि उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया इस बारे में, हमारे वैचारिक जो भी हुए तो उन्होंने इस बात पे पूरी हामी बढ़ते हुए और वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इसके माध्यम से मैं मेरे से जो मेरी एक वे ऑफ लाइफ अभी तक है और मुझे लगा कि उस वे ऑफ लाइफ के हिसाब से ही मेरा इस तरीके का होना चाहिए और इसी तरीके से रहना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि मैं इसी डिटर्मिनेशन के साथ जिस डिटर्मिनेशन से अब चली हुई हूँ और उसी डिटर्मिनेशन से मैं अपने पूरे एम पे शिवेंद्र मेरे साथ हो और हम दोनों इसमें कुछ ऐसी कर गुजरें कि लोग कहें कि हाँ ये सही मिसाल और सही चूज़ हुआ है। और मुझे लगता है कि हम दोनों इसमें कुछ कर पाएंगे आगे, और हमारी ताकत जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से मुझे लगता है कि सभी को यूनाइट होने की ज़रूरत है, तो इसमें भी यूनाइटेड हो के हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ेंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है।
और हर मुझे लगता है कि हर कोई अपना लाइफ पार्टनर जो भी चुनते हैं उनको अपनी इस तरीके की लाइफ पार्टनर इसी तरीके से चुनना चाहिए कि आपकी वैचारिक साँझ के बाद मतलब आप हो, आपके भावनात्मक, मानती हूँ कि भावनात्मक पहले है, भावनात्मक जुड़ते हैं हम, लेकिन एक विचार के साथ आप जुड़ोगे तो वो बहुत अच्छा होगा। ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਬਲ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੈਨੀ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੈਫਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰਾਂ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਮਰਦ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕਠਿਨ ਰਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਬਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਦੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। हमारी एक साथी कविता की शादी अब सेरेमनी अब होने जा रही है, तो मैं सर्वप्रथम कविता और शिवेंद्र को इनवाइट करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपना डिक्लेरेशन है। कल कोर्ट मैरिज में भी डिक्लेरेशन होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, कोर्ट देती है, तहसीलदार देता है कि मैरिज हो गई है, वो सर्टिफिकेट आपने रजिस्टर करना है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन ही आपके द्वारा। तो ये आप जो है आएंगे शिवेंद्र और कविता, तो हाँ लीजिए। अच्छा मेरा एक और भी है इसमें कि हाँ उसका भी है कि जैसे ट्रेडिशन ये है कि लड़की पहले वरमाला डालती है, लड़का बाद में, लेकिन यहाँ मैटर दूसरा रहेगा क्योंकि प्रपोज जो है शिवेंद्र ने किया है कविता को, जब मेरा प्रपोज लगता है इसके लिए, तो इसलिए शिवेंद्र को ही मैं कहूँगी कि आप जो है वरमाला पहले डालेंगे यहाँ भी। कांग्रेचुलेशन आपकी दोनों फैमिलीज को भी। ये हाँ आप हाँ आओ जी। हमारी उषा जी हैं क्रांतिकारी साथी, वो हाँ जैसे बोला गया, सुदेश जी ने वैसे सारी बात रख दी कि इस शादी के बीच में ना धर्म बीच में है, ना कोई पैसा बीच में है, ना पूंजी बीच में है, ना कोई और कॉन्फ़िगरेशन बीच में है, ना कोई ये एग्रीमेंट है। ये पूरी तरह से दो दिलों का मेल है, विचारिक के आधार पर है, और इसको हम लव मैरिज कहते हैं। ये कोई अरेंज मैरिज नहीं है। इसमें किसी पेरेंट्स का कोई जो है ना रोल नहीं है, ना उन्होंने उनके घर को देखा है, ना उन्होंने उनके घर को देखा है, ना वो वहाँ गए हैं, ना वो यहाँ आए हैं, आप सब सुन चुके हैं। और हम उनके निर्देशों पर, आदेशों पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस आयोजन में, उनके ही निर्णय के अनुसार हम इकट्ठा हुए हैं। एक बात मुझे कहनी है कि ये लव मैरिज है और ये बड़ी खुशी की बात है, और हम इस पक्ष के, हमारा संगठन इसका पक्षधर है कि मैरिज समाज में लव मैरिज उनको बढ़ावा दिया जाए, अरेंज्ड मैरिज उनके हम खिलाफ, जैसा कि समाज में जो ज्यादातर डोमिनेंट फीचर है उसके हम खिलाफ। लड़के लड़की से कोई पूछता नहीं, बाप ने फैसला कर दिया, हो गया मैरिज, ये सब गलत बात है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उनके परिणाम बुरे भी निकलते हैं, दोनों के निकलते हैं। क्योंकि हम कोर्ट में देखते हैं, चाहे अरेंज मैरिज है, वो हस्बैंड वाइफ कोर्ट में खड़े हैं,
किसी का कुछ दावा चल रहा है, किसी का कुछ दावा चल रहा है, एक दूसरे में पूरी तरह से कोई रिलेशन नहीं है, नफरत है बीच में। और लव मैरिज में भी ऐसा ही है। तो इसमें ये जो लव मैरिज है, ये सिंपल जैसा कि हम सोचते हैं वैसा लव मैरिज नहीं है, इसमें फर्क। ये लव मैरिज में एक जीवन का उद्देश्य बीच में है। किस बात के लिए लव? क्या एक दूसरे के लिए लव? क्या एक दूसरे पे कुर्बान हो जाने वाला लव? ऐसा प्यार जो इन्होंने कमिटमेंट किया और मैं एक दूसरे पे कुर्बान हो जाएंगे। आपने बहुत सुनी किस्से सुने हैं, पंजाब तो इनके लिए मशहूर है, चाहे वो शशि पुन्नू है, चाहे वो मिर्जा साहबा है, चाहे वो सोनी महिवाल है और लैला मजनू है। आप जानते हैं, आप ये कहानी सुनते हैं, एक दूसरे के लिए पूरी तरह से कुर्बान होने वाले किस्से हैं। पर सवाल ये है कि दो व्यक्ति अगर एक दूसरे पे कुर्बान होने का प्रण ले लें, ऐसा लव हो, समाज को उससे क्या मिला? मैं उसके लिए जीता हूं, वो मेरे लिए जीता है, मैं उसके लिए मर सकता हूं, वो मेरे लिए मर सकता है, और कुछ दिखाई नहीं देता उसमें। उस लव में वो लव इतना संकीर्ण है, इतना स्वार्थपूर्ण है, इतना बहुत ही संकोच उसमें है कि वो एक दूसरे के लिए मर सकते हैं और मर मिटते हैं। और ऐसे उदाहरण हैं। पर समाज को उन्होंने क्या दिया? सिर्फ यही दिया कि हमारी तरह तुम भी मर मिटने का यही रास्ता लो। अगर उनसे कोई प्रेरणा मिलती है तो यही मिलती है कि हमारी तरह से तुम भी इसी रास्ते पर चलो। लव का यही मतलब है, प्यार का यही मतलब है? नहीं साथी, प्यार का यह मतलब नहीं। प्यार अगर जीवन के किसी उद्देश्य के साथ आधारित ना हो, उससे जुड़ा हुआ ना हो, प्यार अगर सिर्फ एक दूसरे के लिए हो, समाज के लिए कोई लेना देना उसका ना हो, वो स्वार्थी प्यार है। वो प्यार एक ऐसा प्यार है जो पूरी तरह से संकीर्ण है, जो एक पार्श्विक स्तर का प्यार है। आज का जो प्यार का मायने है, वो प्यार है विचारों के आधार पर, जीवन के उद्देश्य के आधार पर। कविता इस शादी से पहले अपने जीवन का उद्देश्य तय कर चुकी है। जीवन का उद्देश्य तय कर लेना, उसके बाद प्यार अगर उस जीवन के उद्देश्य से मेल न खाता हो, तो मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं इस बात पे कि कविता ऐसे प्यार में जा नहीं सकती। ये प्यार एक बड़े ऊंचे किस्म का प्यार है। प्यार दो व्यक्तियों को नीचे भी गिरा सकता है, स्वार्थी बना सकता है, और प्यार ऊपर भी उठा सकता है, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। प्यार मनुष्य को शक्ति भी देता है। अब हस्बैंड है, वाइफ है, ये तो नहीं माना जा सकता ना कि एक हस्बैंड और वाइफ का जो इमोशनल एक अटैचमेंट एक दूसरे के साथ है, तो एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं। और प्रभावित कोई तरह से कर सकते हैं कि या तो पीछे खींचने में या आगे बढ़ाने में। या तो हस्बैंड वाइफ कहेगी कि हमें क्या लेना समाज से, हमें तो अपना देखना है, ये क्यों किया, वो क्यों किया। और या फिर हस्बैंड कहेगा वाइफ से कि हमें अपना देखना है, ये फालतू हुआ, टाइम इधर क्यों लगाते हैं, फालतू का पैसा इधर वेस्ट क्यों करते हैं। मायने क्या है कि प्यार जो है, उस प्यार में एक दूसरे को पीछे हटाने का कंपटीशन चलता है कि एक दूसरे के संकल्प, शक्ति और मनोबल को आगे बढ़ाने का संघर्ष चलता है। चलता जरूर, ये कहना गैर वैज्ञानिक होगा कि पति पत्नी है और दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, ना वो उसको कुछ पीछे हटाता है, ना उसको कुछ पीछे हटाता है। ये मेरी समझ से बाहर की बात है, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मैं आपको नहीं कहूंगा, आप मेरे को नहीं कहेंगे। ये तो एक दिली रिश्ता ऐसा है कि उसमें अपने आप ही भावनाओं के द्वारा ही ये सब बातें कही जाती हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपके जीवन की दिशा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के प्रति आप एक दूसरे को कैसे बढ़ाए आगे। प्यार में एक दूसरे को आगे बढ़ाना, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाना, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ाना, उद्देश्य पे एक मत होना, दोनों का एक उद्देश्य होना। अगर नहीं है तो उसको होना। अगर अलग अलग उद्देश्य है जीवन के, तो जरूर उसमें उसके रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। जीवन का उद्देश्य एक हो, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का रास्ता एक हो, उसको प्राप्त करने का वैचारिक विचारधारा एक हो। अगर ये एक ना हो, तब जरूरी है कि दोनों के बीच में एक कड़वा संघर्ष भी छिड़ सकता है। इसलिए ये सब जो आज हम बात कर रहे हैं प्यार के आधार पर जो शादी है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके प्यार का नेचर क्या है, आपके प्यार का नेचर क्या है।
वो आपको संकुचित बनाता है, स्वार्थी बनाता है, संकीर्ण बनाता है, या आपको विस्तृत बनाता है, आपको समुद्र और आकाश की तरह से एक विस्तार देता है। आप सिर्फ अपने परिवार और अपने कुंबे और अपने आप को ही नहीं देखते हो। और ऐसे उदाहरण भी समाज में कम नहीं है, ऐसे उदाहरण भी कम नहीं है। हमारे क्रांतिकारी इतिहास में भी ऐसे उदाहरण कम नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे भगत सिंह और उनके साथियों को अगर आप देखेंगे कि दुर्गा भाभी और भगवती चरण वोरा जो उनके हस्बैंड हैं, उनके बीच में आपस में क्या प्यार था कि भगवती चरण वोरा जब भगत सिंह को छुड़ाने के लिए, जेल में से छुड़ाने के लिए एक बम के धमाके में परीक्षण करते हुए खुद ही वहां शहीद हो जाते हैं, तो क्या उनकी वाइफ वहां लिपट करके रोई? क्योंकि वो ऐसा काम होता कि सारा संगठन फंस जाता। वहां जो जरूरी था वही दुर्गा भाभी ने भी किया। क्या आप सोच सकते हैं आज कि दुर्गा भाभी मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी तो माँ है वो, कि उनके दोस्त उनको उनके सारे कॉमरेड भाभी कहते थे, दुर्गा भाभी। वो आप आज भी नहीं सोच सकते कि भगत सिंह को लाहौर से निकालने के लिए उनकी वाइफ बन के जा रही है, उनकी पत्नी बन के जा रही है, और भगत सिंह उनके हस्बैंड बन के जा रहे हैं। ये जीवन के उद्देश्य में ये बीच में आई है बात। कोई एक दूसरे का पति पत्नी का नाटक नहीं करना चाहता, लेकिन जरूरत पड़ी तो यहां तक भी चले गए वो। और ये उद्देश्य के प्रति निष्ठा कि मेरा जीवन आज किस काम, मेरे क्या फर्ज है, क्या करना है, तो ये चीज अगर पूरी तरह से स्पष्ट ना हो दिमागों में तो बहुत किस्म की अड़चनें आ जाती हैं। इसलिए आज आप यहाँ ये जो शादी का समारोह है हमारे इन दो साथियों का, ये शहीद आजम भगत सिंह के इस संस्थान में है। और शहीद आजम भगत सिंह ने प्यार पे भी जो कुछ कहा है वो पठनीय है। मैं इन साथियों को सलाह दूंगा कि उसको जरूर पढ़ लें कि शहीद भगत सिंह ने भी प्यार के बारे में क्या कहा है। और मैं उनको शुभकामना देते हुए और इस उम्मीद के साथ तो शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते पर चलने का अपना जीवन का उद्देश्य बनाएं और उस पर आगे बढ़ते चले जाएं और एक दूसरे को शक्ति दें, एक दूसरे को मनोबल बढ़ाएं, एक दूसरे को ताकत दें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको फिर एक बार बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। इतनी शादियां मैंने अटेंड करी, वही हल्ला गुल्ला और वही ड्रेसिंग अप, और उसी की मेरे को आदत हुई थी। दैट्स व्हाई टुडे एंड अगर मुझे पता होता तो मैं दिल्ली से आई रही थी, मैं खादी ग्राम उद्योग से मैं भी कुर्ता बना के और पहन के आती। तो प्यार क्या है? तो मेरी नज़र में प्यार वो है कि निर्विचार हो रहो, निर्विकल्प हो रहो, ऐसे शांत हो जाओ कि मन में कोई चहलकदमी न रहे। अकंप जले तुम्हारी चेतना की लो, जैसे दिया जले ऐसे घर में जहाँ हवा का कोई झोंका भी ना आता हो। उसको प्यार कहते हैं और उसी की ही तलाश है। थैंक यू सो मच। बहुत शादियां देखी हैं, हिंदू धर्म की शादियां देखी हैं, सिख धर्म में भी देखी हैं। मैंने अपने घर में बौद्ध धर्म में भी शादी कराई है, लेकिन ये पहला मौका है दोस्तों इस तरह की यूनिक शादी देखने में आ रही। श्याम जी ने कहा कि ये शादी एक अहम है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा बदलाव के लिए संदेश दे रही है। ये आने वाले समय के लिए हमारे नौजवानों को, हमारे सभी साथियों को एक बड़ा संदेश देकर जा रही है। भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम देखना चाहते हैं कि आज के ये जो प्रोग्राम है, आज के इस शादी का समारोह है, ये एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। मैं आज से 30 वर्ष पूर्व 85 की बात है जब मेरी शादी हुई। हम भी दोनों, मेरी पत्नी है, हम दोनों एक संगठन में थे। कमल श्याम जी भी हमारे वरिष्ठ साथी थे। तब कुछ संगठनों से हमारी कुछ कारणों से जुदाई हो गई और मैं डॉक्टर, मैं सर्जन था। और यथार्थ में जो लड़का 17 साल का अपने घर से, और बिल्कुल एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली, बिल्कुल एक पुरातन
संस्कारों का ब्राह्मण परिवार वहाँ से निकला, 17 साल का एक क्रांतिकारी पार्टी की तरफ कदम बढ़ाए, और जब कुछ ठीक सा नहीं लगा तो कदम पीछे हट गए और डॉक्टरी करने लगा, सर्जरी करता था और सारा इसी काम में व्यस्त हो गए। तब ये सुनीता है, 2000 की बात है ये, इसने मुझे कहा कि आप तो सामाजिक आदमी थे, आप तो क्रांतियों की बातें करते थे और अब आप सिर्फ पैसा कमाने में, मैं सरकारी नौकरी में था, कि आप सिर्फ डॉक्टर, ये एक चिकित्सक बन के रह गए। रियली सी पुष्ट मी। और ये नरेश जी बैठे हैं और इन्होंने मुझे कहा कि 1 जनवरी 2000 की बात है कि आप सामाजिक काम शुरू करते हैं कि नहीं करते। मैंने कहा हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 2-3 महीने निकल गए। 1 अप्रैल को शी गेव मी अल्टीमेटम। 1 अप्रैल को इन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया कि आप अगर सामाजिक काम करना शुरू करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम अकेले लगते हैं। रियली मतलब आई वाज स्ट्रिकन, मैं तो मतलब हम हैरान हो गए। हमने कहा नहीं, हम आपके साथ लगेंगे। मेरे ससुर जी का और मेरा जो पत्राचार चला वो बहुत लंबा चला, 2 साल तक हमारा पत्राचार चला। और उस पत्राचार के अंदर अधिकतर यही होता था कि किसी सर्पणी ने तुझे अपने मुंह पास में बांध रखा है। उनकी भाषा बहुत सुंदर लिखते थे, बहुत शास्त्री थे, आचार्य थे, साहित्य में, संस्कृत में ट्रिपल आचार्य थे। और उनकी भाषा मेरे से तो मतलब नहीं बोली जाएगी उस तरह की। वो बहुत अच्छा लिखते थे। तो वो ये कहते थे, लिखते थे कि किसी सर्पणी ने तेरे को अपने मुंह पास में बांध लिया, ऐसी बातें वो लिखते थे। लेकिन उसका जवाब हमारा चलता रहा, बहुत चलता रहा। और आखिर में जब सहमति से जस्ट पहले जो हमारा पत्राचार हुआ, उसकी 1-2 बातें ही मैं आपको बताऊंगी। जब उन्होंने ये ऐसा कुछ लिखना शुरू किया और ये कहा कि हम ये शादी, हमें ये मान्य नहीं है, हम इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मेरा उनसे एक ही बात कहने थे। मैंने उनको कभी पिताजी नहीं लिखा उससे पहले, क्योंकि मैं नहीं मानती थी कि मैं अनाधिकार चेष्टा करूं। मैं जो हूं, जब वो स्वीकार करेंगे तो पिताजी लिख सकती हूँ, नहीं तो नहीं लिखूंगी। मैंने उन्हें भद्र पुरुष करके जो है संबोधन देती थी और उनको यही बात कही कि ठीक है, आप अपने विचारों पे अडिग हैं, मैं अपने विचारों पे अडिग हूँ, आप सनातनी हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो इस बात को नहीं मानती हूँ। हाँ, एक बात आप जो है जरूर मानते हैं कि सीता सावित्री का ये देश है। आप ये कहते हैं कि हाँ, ऐसा सीता सावित्री का ये देश है और वहाँ वर्ण एक बार ही होता है। वो वर्ण मैं भी कर सकती हूँ, मैंने भी कर लिया है। उसके बाद ये आपकी इच्छा है कि आप इसको स्वीकृति देते हैं या नहीं देते हैं। अगर आप आत्मा वगैरह को कुछ मानते हैं, उसका पाप में लगता है, कुछ होता होगा आपकी धर्म के अनुसार, तो वो आपका है, मेरा नहीं है। मैं वर्ण कर चुकी हूँ और इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है। उसके बाद जो उनका जवाब आया, वो आया मेरे पिताजी के नाम, और वो लिखते हैं कि मेरी एक बहुत छोटी सी कुटिया है। वो अपने को हमेशा यही कहते थे कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और इसकी संरक्षिका मैं आपकी बेटी को नियुक्त करना चाहता हूँ। तो आप हमें बताइए कि हम कब आपके चावल खा करके अपनी बेटी को लेने आते हैं। कविता जब 8वीं क्लास में इसने पेपर दिए हुए थे और उसने युग दृष्टा भगत सिंह किताब पढ़ी और मेरे एक साथी ने कहा कि कविता तो भगत सिंह बन गई। मेरे को जबरदस्त गर्व हुआ और मेरी एक दिली इच्छा थी। मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरे तीनों बच्चे क्रांतिकारी बने। जिस विचार को मैंने सही माना है उसको आगे बढ़ाने में मेरे से बढ़ करके भी काम करें, ये मेरी इच्छा थी। और मैं आज अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं और मेरी बेटी पर मुझे गर्व है। मेरी बेटी पर मुझे गर्व है कि मैं ऐसी बेटी का बाप हूं और मैं आज इससे भी ज्यादा अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि उसने जिस मतलब लड़के को खुद चुना है वो उससे भी बढ़ करके है। Actually, I am very impressed with their marriage because it is really the solution of Indian many kind of the problem. First is honor killing because both parents are admitted that marriage, right? Second is the love marriage allowed in India.
third is that dowry system should be ended, right? So I'm very impressed. I'm great appreciate to Mr. Shivendra to you, because if Mr. Shivendra like boy coming in the society, then the definitely dowry system and the girl killing, honor killing, and many kind of the abuse should be end in that society, and the girl birth should be welcomed. बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी दोस्त ने एक मिसाल बनाई है। हम देखते हैं आगे हम लोग क्या करेंगे समाज के लिए। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੀ ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਭਾਰਤੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे शिवेंद्र जैसा बड़ा पार्टनर मिला है, और वही बात है कि सिर्फ शादी का ही हमारा नहीं था, और जैसा शिवेंद्र ने कहा अभी कि हमारे आगे यही चैलेंज है कि अब किस तरीके से हम अपने आगे के लाइफ को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार भी करती हूँ मैं, और साथ में इसको भी एक मिसाल के तौर पे हम जिस तरीके से लाइफ ये मैरिज की सारी सेरेमनी को हम ये बदलाव के रूप में पेश कर रहे हैं, तो उसी तरीके से असली बात तो तभी होगी जब हम अपनी लाइफ में आगे उसको भी एक मिसाल के तौर पे आगे रखेंगे। तो मेरी होप है कि हम इसको और भी ज़्यादा यूनाइटेड होके, और दोनों इकट्ठे होके इस लड़ाई में अब इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं इसमें बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ।